सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने आज अपने अरकान ख़ानदान के साथ तिरुमला में पूजा की। उन्होंने दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने उनका इस्तकबाल किया। बाद-अज़ां मीडिया से बात करते हुए जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस के मुस्तक़बिल में न आने के सिलसिले में पूजा की। वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि ख़वातीन की बहबूद और तरक्की के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पाबंद अहद हैं। उन्होंने आज महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने दवाखाने में ज़चगी करवाने वाली ख़वातीन में KCR किट्स तकसीम किए और इनमें मौजूद अशिया के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद-अज़ां उन्होंने उनके साथ सेल्फ़ी भी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौड़ ने रियासत की ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में महबूबाबाद एरिया हॉस्पिटल को ज़िला हॉस्पिटल के तौर पर तरक्की दी गई है। జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా పురస్కరించుకొని రాష్ట్రంలోని మహిళలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్ ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్గా కన్వర్ట్ అయింది, టీచింగ్ హాస్పిటల్గా. అందులో నిన్న ఈరోజు వారం రోజులుగా ప్రసవించిన మహిళల్ని కలిసి KCR గారి కిట్ ఇవ్వడం, వాళ్ళను పరామర్శించడం, వాళ్ళతో సెల్ఫీలు దిగాలనే ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని, వాళ్ళకు ఒక నమ్మకాన్ని, భరోసాని ఇవ్వాలని మరి గౌరవ సూపరింటెండెంట్ గారు డాక్టర్ వెంకట్రామ్ గారు, గౌరవ జేసీ గారు, డాక్టర్ వైదేహి గారు, అలాగే వైద్యులందరూ అధికారులందరితో కలిసి మరి పర్యటించడం జరిగింది. చాలామంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి తర్వాతనే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఒక గౌరవం, గుర్తింపు సమాజంలో దొరికింది. మరి ఆ శాఖ बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर 5K और 2K रन मुनक़िद की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस, भरोसा और शी टीम्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस दौड़ का एहतमाम किया गया था, जिसको रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने झंडी दिखाई। इस दौड़ का एहतमाम नेकलेस रोड, पीपल्स प्लाजा से टैंक बंड, लिपाक्षी और PVNTR मार्ग तक किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वज़ीर आला ने कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस खसूस में शी टीम्स भी तश्कील दी गई है ताकि ख़वातीन को हरासानी से बचाया जा सके। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में ख़वातीन को भी शराकतदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम्बली सेशन का आगाज़ पीर से हो रहा है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మహిళల భద్రత పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మాంసపుత్రిక షీ టీమ్స్ ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు గుర్తింపు పొందిన కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం గమనిస్తా ఉన్నాం. షీ టీమ్స్ చేస్తున్న సేవలు, ఒక మహిళని, ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి ఈవ్టీజింగ్ చేయాలన్నా, అమ్మాయి సైడ్ చూడాలన్నా కూడా భయపడేటట్టు వాళ్ళ వెనకాల పోలీసు ఉందన్న భరోసా కల్పించిన ఘనత ఖచ్చితంగా షీ టీమ్స్ దక్కుతుంది. వారిని మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తూ ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ రన్ ఏదైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో మరొకసారి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, కండక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ CP గారికి. ఈరోజు నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిపోర్ట్ ప్రకారం మహిళలు సురక్షితంగా ఉండగలిగే నగరం ఏది ఉందంటే అది 100% హైదరాబాద్ అనేది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందంటే దాని వెనకాల పోలీసుల పాత్ర ప్రధానంగా ఉంది. వారిని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా షీ టీం సంబంధించిన టీం అంతా కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తున్న పనితీరుకి మరొకసారి అభినందనలు. అంతర్జాతీయ మహిళల దినోత్సవ సందర్భంగా 8th మార్చ్ రోజు ఒక ఉమెన్ SHOని మేము నియమిస్తున్నాము. SHOగా ఇప్పటివరకు ఎవరిని కూడా వేయలేదు. అది మంచి పద్ధతి కాదని మేము భావించి ఇప్పటి నుండి మహిళలు కూడా లా అండ్ ఆర్డర్లో ప్రతి అంశంలో కూడా వారికి పూర్తి స్థాయిలో భాగస్వాములు చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం. అసెంబ్లీ సెషన్స్ సోమవారం నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అయితే దానికి సంబంధించిన
ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈరోజు బయట నుంచి వచ్చే ఫోర్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. వారి బ్రీఫింగ్ ఇదంతా కూడా ఈరోజు అయిపోయి వారిని వారి స్థానాల్లో ఏ విధంగా డ్యూటీస్ నిర్వర్తించాలో వారికి పూర్తిగా బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాదాపు 1200 మంది అన్ని ర్యాంక్స్ సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ సిపి నుండి హోంగార్డ్ స్థాయి వరకు ఈ బందోబస్తులో నిమగ్నమై ఉంటారు. అన్నీ శాంతియుతంగా జరగడానికి ఎటువంటి ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఉండబోతున్నాయి అనే అంచనా వేసుకొని ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటూ మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. संगारा जाठी संघ हैदराबाद की तरफ से बुगलगुंटा में रविदास महाराज की 645वीं जयंती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें संगारा मंडल की वेबसाइट का आगाज़ किया गया। समाज के सदर नशीन रविदास वाघमारे ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रविदास महाराज ने समाज में इम्तियाज़ के खात्मे के लिए काम किया था। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आज हम संगर जाति संघ हैदराबाद, पूरा ग्रेटर हैदराबाद के सभी मिलकर हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी की 645वीं जयंती मना रहे हैं। हमारी ये जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और हमारे हैदराबाद में भी 22 जगह पर अभी तक रविदास जयंती मनाई गई है। स्टेट वालों ने भी 22 तारीख को पिछले महीने में वो भी रविदास जयंती मनाए हैं। आज हम सभी सिटी के सभी मिलकर आज हम ग्रेटर हैदराबाद में आज जगत गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे जयंती मनाने का मतलब यही है कि हम एक दलित जाति से आने के बाद जो हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी ने है, उन्होंने सारे विश्व को यह बताया है कि हम सब एक हैं और सभी भाईचारे में रहना है, सुख शांति और सभी मिलजुल कर रहने की हमें उन्होंने आदेश दिया है। उनके अमृतवाणी में इतने सारे पद हैं जो सभी हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पूरे विश्व यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी उन्हीं के आधार पर प्रियम्बल बनाकर आज दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने भी अपनी जो पहली किताब है द अनटचेबल्स उन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज जी को अर्पित की है और उन्हीं के उद्देश्यों से, उन्हीं के वाणी से, उन्हीं के संदेशों से हमारा आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हम अभी पूरे रविदास धर्म संगठन वाले पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के जितने भी हमारे दलित लोग हैं उन सभी को एक करके एक संगठन, एक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं ताकि हमें जो भी मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिले, हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं। यही हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी के तत्वज्ञान में यानी उनके अमृतवाणी में रहे जितने भी आचार लिखे हुए हैं उसको पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाए, ना कि यहाँ का ही नहीं परलोक का भी अपना जीवन सफल करे। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आज हम हमारे गुरु की जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रेस का और आप सभी का। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम रविदास सिंह वाघमारे है, मेरा नाम ही रविदास है और मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, हमारे समाज का चेयरमैन हूँ और शेड्यूल कास्ट राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी का स्टेट का एडवाइज़र भी हूँ। धन्यवाद। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ आम्मा अरविंद कुमार ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की ख्वाहिश पर 4 मीनार से हुसैन सागर बराह मौज़म जाह मार्केट असम्बली मैराथन मुनक़िद करने की ख्वाहिश पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने उनको ट्वीट करते हुए इस जानिब निशानदेही की थी। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि गर्मा के मौसम में शिद्दत से पहले यकीनी तौर पर इसका मंसूबा बनाया जाएगा। इब्राहीमपट्टनम कारपोरेशन के हुदूद में सड़क की तोसी के लिए मकानात को मुनहदम कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इस इनेदामी कार्रवाई की मुखालिफत की और कहा कि बग़ैर किसी नोटिस के उनके मकानात मुनहदम कर दिए गए। उन्होंने मुआवजा अदा करने का भी बल्दिया से मुतालबा किया। నోటీస్ వచ్చినా కానీ మాకు 6 నెలల గడువు ఇవ్వాలి. 6 నెలల గడువు ఇచ్చిన దాకా మాకు బతుకుతారు, మేము మాకు ఉంటాందుకు మాకు ఇల్లు సౌకర్యం
మొత్తం ఇళ్ళ సౌకర్యం చూపించాలి మాకు ఉంటాను. ఫస్ట్ మా ఇల్లు సౌకర్యం అయినాకనే మేము ఇళ్ళకి బయటికి వెళ్తాం. అప్పటి వరకు ఒక్కరికి అందరం లేదు. రోడ్డు మీదైనా రోడ్ల మీదైనా వండుకొని తింటాం తయారున్నాం మేము. जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली ने आज जामतुल मोमिनात मुगलपुरा में नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की सेहत व सलामती के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम किया। इस मौके पर जनाब मस्तान अली साहब, हाफिज़ मुजफ़्फ़र हुसैन, नसरीन सुल्ताना कारपोरेटर, अबू राहिल साबिक़ कारपोरेटर और दूसरे मौजूद थे। शहनशीन पर तशरीफ फरमा आज के इस मुक़द्दस मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अहमद पाशा खादरी साहब क़िबला मुअत्तमद उमूमी कुल्लियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व अब्दुल अज़ीज़ एमएलए हल्का याक़ूबपुरा और इस मुग़लपुरा डिवीज़न की कारपोरेटर साहबा मोहतरमा नसरीन सुल्ताना और मजलिस की सिपाही साबिक़ा कारपोरेटर जनाब रहीम साहब, मोहतरम नक़ाब अब्दुल हमीद फारूकी साहब और इस इदारे के बानी व मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मस्तान अली साहब खत्म करना और भाषा का हुक्म है तो 2-3 मिनट से होगा। और जिन मकसद के तहत आज की महफिल सजी है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशगवार मौका भी है और यकीनन होना भी यही चाहिए कि ऐसी महफिल के ज़रिए दुआ का इंतजाम हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वाक़ई सर से कबूलियत की बात है। क्यों कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा तय्यिबुन व ला यक़बलु इल्ला तय्यब व इन्नल्लाहा अमरल मुमिनीना बिही अमरल मुरसलीन व क़ाल या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहान व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। और पाक अल्लाह को ही पसंद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरसलीन को हुक्म दिया कि ऐ मेरे रसूलो कि तुम पाक चीज़ें खाओ और नेक अमाल करो। अलकरीम ट्रस्ट सुफ़ा बैतुलमाल के इश्तराक से गरीब लड़कियों को पकवान की तरबियत फराहम की गई। बादज़ां उनमें असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर मस्जिद अशरफ करीम, हुदा कॉलोनी, सुफ़ा सेंटर और अलकरीम ट्रस्ट के ऑफिस में सादा तकरीब मुनक़िद हुई। मौलाना गयास अहमद रिशादी सदर सुफ़ा बैतुलमाल ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस दौर में लड़कियों को पकवान की तरबियत देना ज़रूरी है। तरक्की के नाम पर रेस्टोरेंट्स की ग़िज़ाएँ घरों में आ रही हैं। जो लड़कियां अपने घरों में पकवान और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहती हैं वो सेहतमंद भी रहती हैं। बाज़ार की ग़िज़ाओं से सेहत पर मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। आज 6 फरवरी 2022 को मस्जिद अशरफ करीम के सामने एक सफ़ा बैतुलमाल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और अल करीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इन दोनों के इश्तराक से पकवान की क्लासेस का इख्तितामी एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। माशाल्लाह से 60 तालिबात के पकवान का एक प्रोग्राम है जिनमें से 30 ख़वातीन ने तरबियत हासिल की पकवान की और मुख्तलिफ़ डिशेस उन्होंने तैयार किए और आज उन्हें सर्टिफिकेट दी जा रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब अब्दुल करीम फ़हीम साहब की खिदमत में कि उन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मुझे
60 तालिबात में से 30 को यहाँ पर आज सनद दी जा रही है और ये बैच अगला बैच भी चलेगा इंशाअल्लाह। मामूली मामले पर बहस और तकरार के बाद दो नौजवानों पर हमले की वारदात कालापत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई, जिसमें दो नौजवान जख्मी हो गए। इन दोनों नौजवानों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां मरहम पट्टी के बाद इन नौजवानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घर के करीब ऑटो ड्राइवर से बहस हुई जो हालत नशे में था। इसने बादशाह अपने साथियों को बुला लिया। उन्होंने कहा कि ऑटो की पार्किंग के मसले पर मामूली झगड़ा हुआ, जिसके बाद इस ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि 12 था 15 अफराद की टोली ने ये हमला किया। हमले की ये वारदात वहाँ पर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है, मैं जहानुमा में रहता हूँ। ये मेरे छोटे भाई है और एक जो है मेरे बड़े भाई है, उनका नाम आदिल है। तो घर के पास में ऑटो वाले के साथ में कुछ बहस हुई। वो ऑटो वाला पीले के था। ऑटो वाला रास्ता टर्निंग है ना भाई, टर्निंग के पास में कोई भी ऐसा कैसा लगाया था, पीले के उन्हें लगा दिया। उसको हटाओ बोले तो उल्टा गाली गलौज करके भाई के साथ में लड़ाई झगड़ा करा। हम बोले चलो भाई ऑटो वाला है ना, जाने दो, करो, ये हो गया चलो जान दो। चाचा के घर के पास जाने का था, वहाँ चाचा के घर को बड़े भाई चले गए। बड़े भाई गए वहाँ पे, इतने में मालूम हुआ इनकी लड़ाई हुई भाई, ऑटो वाले से कुछ बहस हुई। तो इन्हों क्या करे, छोटे भाई, मैं घर पे नहीं था, इन्हें छोटे भाई क्या करे, वहाँ पे गए। वहाँ गए तो उतने में वो ना अटैक करने आ गए। अब वो ग्रुप जो है ना भाई, इतना पीने वाला ग्रुप है ना, उनके बारे में कुछ भी मालूम करो। उनको विरासत में शराब मिली बोलते हैं। उन घर में पीले के घर का और का कुछ भी नहीं है, तो पीले के जुल्म कैसा करेंगे साहब ऐसा हमारे पर। देखो बच्चा कितना स्टूडेंट है, उन्हें डिग्री फर्स्ट ईयर में भी उसका करियर ख़राब हो जाता था, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हो जाता था तो। आप लोगों से हम एक उम्मीद रखे हुए हैं, आप लोग हमारी हेल्प करिए साहब। और वो जो है ना, उन लोगों का हर वक्त का जुल्म है। देखो आप कितने लोग थे अटैक करने वाले? अब देखो साहब 12 से 15 जने थे वो लोग। ये आप लोग पहचानते हो लोग को? भाई महल्ले के ही है भाई, एक ही महल्ले के है, शुरू से देख लेते हुए हर वो चीज़ में। अब हमारे चलो भाई बस्ती के हैं ना, महल्ले के, एक दूसरे के साथ में अच्छा रहना करना, बल्कि हम कई बार उनके कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते। अरे घर के पास जो है ना, नीचे एक पैन शॉप खुला रहता, वहाँ पे जो है सो तमाशे कर लेते करते। पीना है, तमाशे करना है भाई, इनका काम खाली। बस हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पीने वालों से हमारे को जरा ना साहब ख़त्म करो ये खिस्सा। नहीं तो लड़ाई झगड़ा, खाली लड़ाई झगड़े में क्या आते जाएंगे। बोलो दुनिया के मर्डर होते जा रहे हैं। रिसेंटली एक मर्डर हुआ, वो भी पीले के आगे करके गए। वहाँ पे आरिफ नाम के शख्स का मर्डर हुआ था देखिए जहानुमा में। वो भी मर्डर जो है सो वही चिल्ला, वो आरिफ को भी मारे थे ये लोग। अभी आप लोग कंप्लेंट कराए PS में? अभी कालापत्थर PS में कंप्लेंट करे सर। मुलाजिमत के लिए दुबई ले जाकर एक शख्स को धोखा देने पर 6 मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कारवान के मोहम्मद राफे नामी शख्स की शिकायत की बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई, जिन्होंने कहा कि दुबई ले जाकर उनको धोखा दिया गया और उनसे रकम भी ले ली गई। फ़र्ज़ी सैलरी सर्टिफिकेट के ज़रिए उनके नाम पर कर्ज़ लिया गया और बाद अज़ां उनको हैदराबाद वापस भेज दिया गया। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की।